एलिगेशन है पब्लिक का तरफ से। तो ये लिखा है कि अंडर MLA लेड्स फंड इन 2020-21 first and third installment Sri Lumo Ruba disabled man of Talam village has been sanctioned ₹3 lakhs, ₹5 lakhs for handicraft assistance, but he did not receive any money. MLA, what is your clarification on? मिट्टी लेके कोई अरुणाचल का MLA कोई मिट्टी लेके गुवाहाटी में गया है, पत्थर लेके गया है। मैं असम गवर्नमेंट को मैं चैलेंज किया हूँ, ये मेरी आदि तक का मिट्टी है बोल के, ये मेरा पत्थर सिंगन रिवर का बोल के। वीकनेस ऐसे, तो इसको आप कैसे जो ऐसा बोल रहे हैं, इन लोग जाने के लिए इच्छा कर रहा होगा, क्योंकि जाओ केंतोरे ना हारो। मैं बोलता हूँ मैं रुकाऊंगा, अरुणाचल में रहने दो, मैं जीतूंगा। डेट को देखा और इस सियांग में दे दिया, उसको मैं क्या करूँ? You are a weak candidate. Yes. तो that is wrong. You are. Nobody is wrong. नाम तो नहीं बताया। बोलिए, नाम जरूरत नहीं, सब्जेक्ट बोलिए। नाम नहीं बताए, वही है जो लोअर सियांग सिक्किरिमा को आप जो बहुत पब्लिक के ऑब्जर्वेशन के हिसाब से बहुत फिजिबल होना था, उसको आपने क्यों प्रेस नहीं किया है? उसको आपने क्यों जाने दिया? Why did you let just go? You are just a mere figure. Kentore Runa is a mere figure, but power and function is run by some other person. That is my son. Strictly बोलिए ना। तो उसमें is that true? Yes, in some senses. मुझे ये लगता है कि some people are there who are jealous about you, who are against you, who really want to pull you down. But I want you to answer for those people, those supporter of yours. Throw you. I am giving answer. Health उसका रोड का बता दिया, and health का आप बता दीजिए। आप मेरा ट्रीट कर देखिए, देखिए। क्यों सर? It is artificial. So okay. Without teeth. Today, with the changes taking place in our society, the information travel faster than ever. But the reliable information is guaranteed here in MPL News. Today we are going to talk with a person who is known to be very humble and down to earth. So welcome all you to MPL News. This is a new episode of No Candidatem Henlaju. I'm your host and host, Miss Nyapi Riba. No Candidatem Henlaju. This program is co-powered by Capital Lodge Food and Lodging and powered by Suite and Home PG for working ladies and girls student Itanagar. So we have with us today Mr. Kentore Runa. Welcome you, sir. Welcome you. He served as a DDAC, and right after his retirement, he contested election and he won and became the MLA of 36 Nari Koyu constituency. And right after his retirement, he contested MLA election in 36 Nari Koyu constituency, and he won in the first instance and became MLA for 2 terms. And this year also he is ready to roll up and become the MLA once again. So sir, इसमें आज हम लोग because आज का वोटर्स और पब्लिक क्या होते हैं कि जितना आपके कैंडिडेट्स के बारे में जानते हैं उतना ही और जानने का मन करता है। तो MPL न्यूज़ लाइव ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है नो कैंडिडेटम हेनलाजू, so that our viewers and our public can know about our candidates more and more, और उसका जो करने वाले हैं, क्योंकि 5 साल is a very big thing now for us as a public. तो 5 साल वो आपको वोट करके उतारने वाले भी हैं और किसी और को उतारने वाले भी हैं। तो आपका पर्सपेक्टिव क्या है, एरिया का डेवलपमेंट करने के लिए आप क्या क्या कर रहे हैं, उसको जानना बहुत ज़रूरी हो गया है। इसलिए ऑन पब्लिक डिमांड वी केम हियर टू interview you and ask you so many questions which will be little complicated, interesting, or which will we'll try to bring out the facts which you have said in public, or what allegations public are making against you. So are you ready, sir? Yes. आप ready है ना?
तो आप हमें सबसे पहले ये बताइए कि आपने 2 टर्म्स एज MLA सर्व किया है 36 नारी कोयू कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो इसमें आपने ऐसा क्या क्या काम किया है जिसके लिए आपको फिर से दोबारा इलेक्ट किया चाहिए? आप प्लीज़ अपने पब्लिक को बता दीजिए। आपने पहले मुझको पूछी कि आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में थे जी। उसका सवाल मैं पहले दूंगा। ओके। मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में पहले JT, देन हेडमास्टर, देन असिस्टेंट प्रिंसिपल, देन प्रिंसिपल, देन DDSC. जी। I served this Arunachal Pradesh for last 36 years and 8 months in the Department of Education. ओके। Your next question I heard, while serving as an MLA at 36 Narikoyu Assembly Constituency in Lower Siar District, then East Siang District, उसमें मैं पब्लिक ने आने के पहले जो काम करने के लिए बोला जी। उस पर मैं नोट लिखना शुरू किया। जो कंसर्न मंत्री है इन लोग को भी लिखा हूँ और स्पेशली डिप्टी चीफ मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर दोनों को बहुत क्लोज से बात किया। और मैं जैसा चाहा सबको तो नहीं मिला लेकिन मिला हूँ बहुत। पहले ईसाई द्वीप में ओल देखा तो सेरेन मैं पहला बार रास्ता बनाया हूँ, पहले ये नहीं था। दूसरा नारी टाउन को अभी बहुत अच्छे से रास्ता कर दिया हूँ। पब्लिक विटनेस है, आप लोग भी कभी कभी जाते होंगे और जाती होगी तो उसमें आप जानेंगे। उसके बाद नारी तो कोरा उसमें सोम पार्ट्स को मैं वार्डनिंग में लगा हूँ, कर भी दिया हूँ जी। उसके बाद लीप इनटू कुछ एक्सटेंशन करके NEC रास्ता में ही 1.2 इतना रकम रख के मैं उसमें काम करने दिया हूँ। उसके बाद कोरा तो माँ ने फर्स्ट टाइम में अपना से इलेक्शन के समय में बोला था कि मैं अपना से गाड़ी ले आऊँगा, तो इसी प्रॉमिस को पहला बार मैं गाड़ी ले आया हूँ। अपना इन लोग का रास्ता बना के मेरा अपना सुविधा के अनुसार चीफ मिनिस्टर साहब ने, उसके बाद डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब ने कुछ रकम दिए, उसी पे मैं रखा हूँ और रास्ता अभी भी कर रहा हूँ। उसमें समय लगेगा, जो ब्रिजेस करना है अभी 2 थोड़ा बाकी है, बाकी को तो ब्रिज भी हो गया, उसके बाद कालवर्ट्स हो गया, उसके बाद वाटर ड्रेनेज हो गया, सीपेज में जहाँ जहाँ था उसको भी ठीक कर दिया हूँ ये। उसके बाद कोयू तो कोरंग तो कोयू 18 करोड़ का मैं इस बार काम किया हूँ, काम चालू है। परमिशन कटिंग हो गया, अभी ब्लैक टॉपिंग करने के लिए बाकी है। कॉन्ट्रैक्टर जो चाह रहा था उसको सब कॉन्ट्रैक्टर नहीं कर पाया, इसलिए अभी मैं खुद को करने के लिए मेरा बेटा को मैं बोला हूँ। तो लोगों बोलते हैं इसमें अपना बेटा को काम करने दिया, अभी जितना बोला हूँ मेरा बेटा नहीं किया। ओनली कोरा तो कोई को 18 करोड़ का उस दिन CM का मैं जहाँ तहाँ नहीं बोलता हूँ। सर मेरा वही सवाल बाद में मैं पूछने वाली थी कि आपको ये वो तो एलिगेशन में मैंने पूछने का सोचा था कि आपको बोला है कि किटन किन्स को ही आप करने देते हैं। हाँ, आपने 18 करोड़ का था तो उसमें CRIF में तो काम फॉर्मेशन कटिंग हो गया। उसके बाद अभी ड्रेनेज भी हो गया। कोई ब्रिज जो है ब्रिजेस कोई तो पहले मैं 2-3 तो बना के रखा हूँ, अभी 1 या 2 बाकी है, उसको अंडर कंस्ट्रक्शन में है। लोगों कॉन्ट्रैक्टर होने से पब्लिक को काम नहीं देता है। एक ही काम मेरा बेटा तोगर ने काम किया है, उसको पब्लिक को करागा आपका विटनेस है, मानेगा आपका विटनेस है, सीधोगा आपका विटनेस है। तो इन लोग अपने से किए सब काम को, ओनली 1 का 2 का इन्होंने किए हैं। लेके
20-30 ऐसा आदमी को काम दिया। उसके बाद कोई तो गोए जिरदो रोड, उसमें 32 करोड़ का, उसको भी उस दिन सीएम जब आए थे, एमपी भी आए थे और 5 एमएलए आए थे, तो उस समय ये बात भी किया हूँ, ये कौन कॉन्ट्रैक्टर है, किसको कौन ने दिया, लेकिन मेरा बेटा इसको नहीं किया। 32 करोड़ का था। शायद अरुणाचल में ऐसा कोई भी नहीं होगा, किसी को अपना हाथ डाल के कॉन्ट्रैक्टर किसी को देता होगा, लेकिन मैं 1 रुपया भी उसका सुविधा नहीं लिया हूँ। ओके, तो सर आप जैसे कि आपके बैकग्राउंड को आपने भी बहुत क्लियरली हम लोग को बताया है, योर बैकग्राउंड इज़ लाइक बेसिकली फ्रॉम एजुकेशन। तो यहाँ में मैंने तो बोला था, माई क्वेश्चन वाज व्हाट यू डिड फॉर people of Narikoyu so that they can elect you one more time. तो इसमें somehow I felt like you have not mentioned about education sector, which should be a priority for you as being from education background. तो उसके सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में आपने क्या ऐसा काम किया है? Because now I think education is and should be the most important thing. For last 2 years, I had a chance to serve as advisor to the education minister. Okay. For two years. Okay. Of course, now it is almost ended. While serving as an advisor to the education minister, you see, model school, model higher secondary school, say at Koyu. From my side, from SIDF, from RE, I have given 1.4. Construction is going on by one of the contractors of Koyu area. Then more than 8 crore school building infrastructure is to be coming up shortly. Tender is plotted, tender is okay, and now contractor is willing to start the work there at Koyu. Sir, so in the Department of Education, this is the highest infrastructure development. Toilets from SIDF, number of toilets have been constructed, especially in the higher secondary schools. Then in some of the UPS, upper primary schools, I have done that work. Then regarding job creation, job is created through department from the headquarters. Then it is given chance to they will give interview in written, also in Viva. Especially in education, a random appointment will not serve the public or the future of the generation or the students. Therefore, those who are hard workers, those who are really intelligent, those who can teach the next generation, they were appointed through departmentally, not from the MLA. MLA has no right to give any appointment, especially from my side. Yes. I know only DC and state authority can appoint through their merit. हेल्थ के सेक्टर में भी आप बता दीजिए, क्योंकि वी नो कि एक एमएलए व्हेन वी से इट्स व्हाट हैव यू डन थ्रू आउट द इयर्स यू हैव सर्व एज एमएलए, व्हेन वी आस्क द क्वेश्चन वी डोंट ओनली एक्सपेक्ट अबाउट द जैसे कि रोड्स बना दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ बना दिया, वी डोंट ओनली आस्क अबाउट दैट, वी आर मीनिंग वी वांट टू नो कि इफ यू हैव टच्ड एवरी सेक्टर and which are very important sector, we can't avoid, like education तो हो गया, उसको आपने बता दिया, and health उसका रोड का बता दिया, and health का आप बता दीजिए. आप मेरा ट्रीट कर देखिए, देखिए क्यों सर? It is artificial. So okay. Without teeth, survival is very short. For that, in medical sector, at Nari, yes, from my SIDF fund, I have constructed dental unit with full equipments. okay. Then ASAs are there,
doctors are there. They are working peacefully without any force from MLA. तो हम ये बोल सकते हैं ना कि इम्प्रूवमेंट हुआ है कि पक्का वो मतलब आप आने के बाद इम्प्रूवमेंट्स यहाँ हुआ है yes. ना, वो पक्का है ना? और कंस्ट्रक्शन बहुत हो रहा है। कोई देखिए, आप नारी देखिए, आप तलम देखिए, और मुझको देना है, अभी भी बाकी है देने के लिए, दूंगा। वो आप रेडी है ना? हाँ। तो ओके। तो मेरा दूसरा सवाल है, एक आपका वीडियो जो रोहतक में आपने बोला था वो कि आदि ताको विलेज ना जो प्रपोज किया है आसाम में चले जाएंगे, तो उसको आप रिटेन करने के लिए आपने क्या स्टेप लिया है इंडिविजुअली, और अगर मतलब आप अभी भी कुछ स्टेप ले रहे हैं कि यू आर जस्ट वेटिंग फॉर द अपर हैंड्स टू डिसाइड? आपने एज ए रिप्रेजेंटेटिव आपने क्या अपना तरफ से कंट्रीब्यूट किया है उसको रिटेन करने के लिए, और क्या कर रहे हैं वो बता दें। हाँ, आदि ताको के लिए जी 1972 तक जी ये रेलवे लाइन तक ये डिमार्केशन था, असम अरुणाचल बाउंड्री। जी लेकिन 1998 में असम ने रातों रात फोर्सफुली बॉर्डर आउटपोस्ट पुलिस स्टेशन जी आदि ताको में बैठाया है, और इन लोग वहाँ तक ये असम बाउंड्री डिमांड करते हैं। इसलिए ऊपर में आदि, नीचे में आदि ताको, ऊपर में असम का कोई लोग, उसके बाद इसका ऊपर में लुम्पो विलेज है। तो ये एनसर्कुल्ड है, असम का पॉपुलेशन एनसर्कुल्ड है। नाम से ही डिक्लेरेशन आप देखिए, जी 1, 2, उसके लिए मैं कार्डोनियर लोअर सियांग से, उसके बाद स्पेशल मेंबर केयम दाबू, चेयरमैन है तुमके बागरा, जी बोथ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ धेमाजी एंड लिकाबाली लोअर सियांग। हम लोग गुवाहाटी में, ईटानगर में, धेमाजी में, जुनाई में बैठे हैं, मतलब मीटिंग। जी तो बहुत बार आर्गूमेंट भी हुआ। मैं अरुणाचल का मिट्टी लेके उधर गुवाहाटी में ले गया हूँ, अरुणाचल का पत्थर ले गया हूँ, तो आप इसको खाइए, मैं तो खा सकता हूँ, आप खा पाएंगे? मैं ऐसे पूछा भी हूँ। लेकिन ये दोनों गवर्नमेंट का काम है, बॉर्डर इशू। जो सकता हूँ बहुत अच्छे से सॉल्व हो गया, जो नहीं सकता हूँ असम के अंदर में उसको करना बहुत मुश्किल है। बॉर्डर चीफ मिनिस्टर लेटर ऑन में बात करके उसको संभालेंगे। जी आप तो पब्लिक अभी क्या एक्सपेक्ट करे? मैं पब्लिक को भी बोला हूँ, बाउंड्री बहुत द विलेजेस, वहाँ का आदमी लोग, यहाँ का आदमी लोग, पब्लिक लीडर्स लोग बात करो, कहाँ से डिमार्केशन करना है। डिमार्केशन के लिए ऑलरेडी इन लोग मीटिंग बैठा के साइन भी कर लिया, तो उसमें जाइए, हो गया। तो उसमें कोई फोर्सफुल नहीं है, मेरा तरफ से नो बोलने का कोई राइट नहीं है। मैं ये सही कहूँगा अरुणाचल में आने के लिए, मैं कर बहुत के लिए भी लिखा था। ये है। तो और इसके साथ साथ आपको ये एलिगेशन लगाया गया है कि केंटो रेना इज जस्ट ए कैंडिडेट हु जस्ट प्लेस हिज डिज़ायर, आप प्लीज गौर से सुनिए कि प्लेस हिज डिज़ायर इंस्टेड ऑफ प्रेसिंग हिज डिमांड। ये बहुत डिफरेंट टर्म्स यूज किया गया है, मीनिंग ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन इट हैज़ अ डिफरेंट एटीट्यूड दिस टू वर्ड। ऐसा प्लेसिंग योर डिज़ायर, कोई भी एमएलए अरुणाचल का ऐसा कोई चिंता नहीं करेंगे। वो जो चिंता करता है वो नीच माइंड का होगा। अपना मिट्टी को किसी में जाने के लिए दे दो बोलने वाला आप मिलेंगे नहीं दूंगा, रुखाऊंगा बोल के बार बार मीटिंग जाता हूँ, और अभी भी कोशिश करता हूँ अरुणाचल गवर्नमेंट को भी ईटानगर में मैं मैप के साथ दिखा के ऐसा करने से अच्छा है बोल के मैं सजेशन भी दिया हूँ। यहाँ में ये क्वेश्चन में ये बोला है कि यू आर जस्ट सजेस्टिंग what you want, you are not demanding that, you are not yes I have demanded
अभी मैं पहले बोला हूँ, मिट्टी लेके कोई अरुणाचल का एमएलए कोई मिट्टी लेके गुवाहाटी में गया है, पत्थर लेके गया है। मैं असम गवर्नमेंट को मैं चैलेंज किया हूँ, ये मेरी आदि तको का मिट्टी है बोल के, ये मेरा पत्थर सिंगन रिवर का बोल के, सिंगन स्ट्रीम का बोल के दिया। अभी ये ब्रह्मपुत्र से नहीं आया, ये 10-15 तो गांव पार करके इधर आया है। इसलिए खा के देखो तो, मैं खाता हूँ, आप लोग भी खाइए। किसी का हिम्मत नहीं था, क्योंकि इन लोग का ये मिट्टी नहीं है, इन लोग का पत्थर नहीं है। मैं खा सकता था क्योंकि मैं नीदर हूँ, उतना तक मैं चैलेंज किया। तो ये है क्या, तो ऐसा देने का इच्छा। ये लोग मतलब ये भी बोल रहे हैं कि पब्लिक लोग की दैट स्ट्रेंथ विच वी वांट टू सी फ्रॉम आवर कैंडिडेट, आवर रिप्रेजेंटेटिव, वो दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि हिस्ट्री को देखा जाए, रिसेंट आवर हिस्ट्री को, नारी कोयू का स्पेशली, तो डिस्ट्रिक्ट बनाने का प्रोसेस और कुछ हिस्सा लोअर सियांग का ईस्ट सियांग में चले जाने का, और जो अभी हम दोनों ने डिस्कस किया है कि आदि ताको विलेज असम में जाने का, तो पब्लिक बोल रहे हैं कि मे बी दीज आर अ साइन ऑफ वीकनेस। ऐसे तो इसको आप कैसे जो ऐसा बोल रहे हैं, इन लोग जाने के लिए इच्छा कर रहा होगा, क्योंकि जाओ केंतोरे ना हारो। मैं बोलता हूँ मैं रुकाऊंगा, अरुणाचल में रहने दो, मैं जीतूंगा, मेरा यही इरादा है। और सर इसमें एक बात हम लोग ध्यान देना होगा कि यस, ड्यूरिंग योर टेन्योर बाइफरकेशन हुआ है, और जो जैसे कोरा इशू, जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे लोअर सियांग में आ जाएंगे, वो इस सियांग में चले गए। तो आपके टेन्योर में ज़रूर बाइफरकेशन हुआ है, डिवीज़न हुआ है, तो उसमें आप प्लीज़, आपका क्या जस्टिफिकेशन है और क्या आप एक्सप्लेनेशन देते हैं, उसको आप प्लीज़। डेमोक्रेसी इज बाय द पीपल। फॉर सेपरेटिंग 2 villages in upper region, upper 36 Nari Koyú, yes, Sido and Kora, they have mandated themselves to go to Isiang. Okay. Why should I? I tried my best. Even I have tried my honorable Jila Parishad member Padu Nigom to walk out for Kora so that it should be retained at Lower Siang district, in Lower Siang district, or maybe at Lower Siang district, even Sido also. But he also could not do, myself also could not do. Government of Arunachal Pradesh, they have tried to mandate by voting. So our side was very poor, their side is very heavy. So it is by the people. तो आप ये बोल रहे हैं कि उसमें आपका रोल प्ले करने का कोई नहीं था? मैं प्ले किया हूँ रिटेन करने के लिए, लेकिन गवर्नमेंट जॉब मैंडेट को देखा और इस सियांग में दे दिया, उसको मैं क्या करूँ? ये गवर्नमेंट का काम है। पब्लिक ये बोल रहे हैं कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, यू जस्ट प्लेस योर डिमांड इंस्टेड ऑफ प्रेसिंग योर डिमांड। ऐसे प्लेसिंग योर डिजायर मींस रुकाने के लिए मुझसे कोई अच्छा आदमी होगा तो मैं कोशिश करता हूँ, उसके बाद मैं भी कोशिश किया हूँ। कोई बहुत लोग अरुणाचल का स्टूडेंट्स यूनियन भी, गालो स्टूडेंट्स यूनियन भी ट्राई किया है, नहीं सका, क्योंकि ये जमीन जो है वहाँ का ही आदमी पासियात में रहने, इस सियांग में रहने के लिए कोशिश करेंगे तो आप कौन है मैं कौन हूँ, हम दोनों मुंह से नहीं सकेंगे। और गवर्नमेंट जैसा, इन लोग जैसा चाहा गवर्नमेंट ऐसा कर दिया, ये राइट है। तो आपको ये बोलना कि आपके बारे में ये बोलना कि यू आर ए वीक कैंडिडेट, यस, तो दैट इज रॉन्ग। यू आर नोबडी इज रॉन्ग, एवरीबॉडी इज वीक। सो इसमें ये लोग ने बोला है कि आपने जो लेजिस्लेटिव असेंबली में आपने जो स्पीच दिया था उसमें आपने बोला कि आफ्टर ब्रीफिंग एवरीथिंग अबाउट आदि ताको विलेज और ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बनाने का सबको आप बोलने के बाद एंडिंग में आप कंक्लूजन तरफ में आपने ये बोला था कि ओके वी विल बी obliged to whatever our upper hand saying. Yes. I should not go against the decision of the cabinet. Cabinet is the supreme authority of government in a state. So whatever I may speak, it will not work properly because they will not against me, but circumstances allow them to do so.
So I am to obey. Even I cry, even I do halla gulla in the assembly, Yes. that will not work. By praying I can do it out, but I have tried lot. तो आप ये बोल रहे हैं कि आपके हिसाब से आपके जितना कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से आपने पूरा मैं जोर करके डाला। दिखाया हूँ, नहीं सका। तो मिसअंडरस्टैंडिंग, तो पब्लिक के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहे मैं हैं खुद कि- खुशी हूँ, मैं उतना तक करके देखा हूँ बोल के। तो खुद you're करके saying that देखा you're हूँ, satisfied? नहीं सका हूँ, अभी मानना पड़ेगा। पब्लिक को भी मानना पड़ेगा, मैं भी मानना पड़ेगा। कैबिनेट से आगे कौन है? तो सर आप जितना भी एलिगेशंस लगा रहे हैं उसके जस्टिफिकेशंस दे रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं उसको, तो आप क्या रीज़न आपको लगता है कि इस रीज़न का वजह से मे बी दिस पीपल आर लाइक मेरे अगेंस्ट चल रहा होगा, आपको कुछ ऐसे लगता है? सी क्योंकि आई थिंक समटाइम्स वी रियली नीड टू सी आवरसेल्फ वेयर वी आर स्टैंडिंग, कि आपने जो किया जैसे किया बिकॉज यू ओनली नो दैट, लेकिन पब्लिक को कैसे बताना है, पब्लिक को कैसे जानने देना है इज नाउ अप टू यू एंड वी आर गिविंग यू प्लेटफॉर्म एनीवे। तो अभी यू हैव, मतलब आपको ये बताना है कि क्यों लोग जो आपके अगेंस्ट है वो क्यों हो सकता है। कल आप माँ क्योंकि बनेगी, है- कल आप माँ बनेगी, अब दो बच्चे का तो भी आपको खराब पाने वाला रहेंगे, तो एक बुरा समाज में खराब पाने वाला रहेंगे। ये डेमोक्रेसी का नियम है, ये लॉ ऑफ द वर्ल्ड। तो यू डोंट हैव हार्ट फीलिंग्स अबाउट ऑल दोस No, पीपल? no, no, no. Let them feel. Why should I? I am equal for all. यस, ओके। तो आपका ये बार अगर आप जीत जाते हैं तो आपका क्या क्या मैनिफेस्टोस होगा, और जो आपने लगता है कि पिछले टर्म में नहीं किया है, तो ये बार आप क्या क्या करने वाले हैं जिससे आपको मतलब वोट करने का मन करेगा लोग? मैं आप पहले पूछिए हैं, एजुकेशन है, हेल्थ है, सबसे ए ग्रेड का ए रास्ता ही होगा। रास्ता जब होंगे तब डेवलपमेंट ऑटोमेटिक है। तो स्कूल होंगे, एग्रीकल्चर होंगे, हॉर्टिकल्चर होंगे, वेटनरी होंगे, मेडिकल होंगे, यही है प्रोविज़न। मैं अपना चिंता करके ये करूँगा, पहाड़ में और एक हॉस्पिटल बनने से नहीं होगा। जहाँ पब्लिक है उस सिचुएशन जहाँ मैं फेवर है उसमें करूँगा, लेकिन इसके लिए गवर्नमेंट जो फंड देंगे, फंड रिक्वेस्ट करूँगा, फंड देने से मैं उसको काम करने के लिए। और बीजेपी का जो मैनिफेस्टो है, मैं उससे 20% 10% काम करने के लिए कोशिश करूँगा इफ़ आई एम इलेक्टेड। ओके। तो यहाँ का आपका अपना पब्लिक ने बहुत लंबा चौड़ा आपको बहुत डिसर्टेन होके लिख के भेजा है, आपको मैं पढ़ देती हूँ। यस, उसका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट नाम तो नहीं सब्जेक्ट को बताया, बोलिए, नाम जरूरत नहीं, नाम सब्जेक्ट नहीं बोलिए। बताए, वही है जो लोअर सियांग सिक्किम को आप जो बहुत पब्लिक के ऑब्जर्वेशन के हिसाब से बहुत फिजिबल होना था, उसको आपने क्यों प्रेस नहीं किया है, उसको आपने क्यों जाने दिया? व्हाई डिड यू लेट जस्ट गो? यस, सिक्किम में प्रपोज नहीं किया था, सिक्किम आपने प्रपोज किया था? सिक्किम पहले ही प्रपोज कर रखा है। ओके 20 years, 15 years, 19 years, 18 years पहले प्रपोज किया है। जी। उस समय में भी नहीं कर पाया। हम्म, मैं जानता हूँ, हो ना हो, मेरा समय में मैं रिस्पॉन्सिबल लेता हूँ। एक डिस्ट्रिक्ट हो, उसका एसपीडीसी पोस्टिंग हो और एसपीडीसी उसके लिए काम करे, इसलिए मैं प्रपोज रीप्रपोज समझिए, मैं उसी को सपोर्ट किया था। सिक्किम जगह भी है, लोकेशन बहुत अच्छा है, रोड भी मैं बना दिया, एमएलए लेट से मैं रोड भी बना दिया, 13 किलोमीटर 10 किलोमीटर में बना दिया हूँ। बहुत पैसा भी गया है, कल परसों भी उसको बनाना है, पब्लिक को जाने देना है, तो उसमें मैं बहुत कोशिश किया, लेकिन गवर्नमेंट के पास बोले हैं कि रास्ता नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी अभी नहीं है, रोड के लिए बहुत खर्चा होगा, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत के लिए समय लगेगा, इसलिए जो रोड ऑलरेडी है सीजी में, उसके बाद ये सेकेंड प्रपोजल था, सेकेंड कैटेगरी में आया था। फर्स्ट सिक्किम था डीसी का रिकमेंडेशन, लेकिन सेकेंड रिकमेंडेशन ये सीजी था,
तो गवर्नमेंट ने देखा, डिसीजन लिया, आपस में कैबिनेट में बात किया, चलो सीजी में। लेकिन आज इसमें भी अंदर में मैं बोलूँ तो बहुत कुछ है। मैं सिग्नेचर को लेकर पब्लिक को दिखाऊँ तो पब्लिक गुस्सा भी होंगे। उसमें भी इंट्रिक कोई लोग हुआ है, इंट्रिक कोई चालूबाजी भी किया है। सिग्नेचर भी करने वाला आदमी मैं जानता हूँ, लेकिन नहीं बोलूँगा। उसमें मैं जैसा बोला था ऐसा करने से आज तक बिल्डिंग भी होना था, कुछ भी होना था। लेकिन आज सीजी में काने वाइल्ड लाइफ का अंदर में आता है बोल के बाद में मिलने से होगा, नहीं मिलने से भी क्या करेंगे, गवर्नमेंट ऑल्टरनेटिव ढूंढेंगे होंगे। लेकिन सिक्योरिटी को देने से बाद में भी अच्छा है और जगह नहीं मिला है तो इसलिए सिक्योरिटी जगह नहीं मिला है बोल के तो हम लोग उधर इतना दूर में जा नहीं सकते। तो डिपार्टमेंटल शेयरिंग इन लोग पहले बोला था, उस समय में डिपार्टमेंटल शेयरिंग इन लोग 15 ईयर्स में 20 ईयर्स में कर नहीं पाया। तो उस दिन 27 जनवरी को ऑनरेबल सीएम पिकते में कुरुक सर्कल में आए थे। तो इन्होंने बोले हैं ये तुम एप्लीकेशन दिया है सर, मैं दे के सबको दे के रखा हूँ, मैं एप्लीकेशन दे के रखा हूँ। और इन्होंने उधर जाके सब देख के श्योर मैं दूंगा, 3 डिपार्टमेंट या 4 डिपार्टमेंट इन्होंने देंगे। अभी ये देंगे बोले हैं, देंगे। और सीएम तो इन्होंने होंगे, दूसरा सीएम तो आने वाला तो नहीं है। इन्होंने होंगे, मैं आशा करता हूँ मिलूंगा। तो वो आदमी जो सीएम है बोलता है करता भी है। तो आप पब्लिक को एश्योर कर रहे हैं ना कि हाँ एश्योर, सीएम जब एश्योर देंगे, एश्योरेंस देंगे, मैं पब्लिक को क्या गुमराह करूंगा। ओके तो उसी इंसान ने लिखा है ड्यूरिंग योर टेन्योर विलेजेस लाइक the Pimoli, the Tak has been bifurcated from Nari administrative circle and transferred them to Ruksin circle under East Siang district. तो इसके बारे में भी आप इसमें कास्टिंग जो है बोर्ड कास्टिंग है नारी कोई में होगा अनलेस इट इज डिलिमिटेशन इज ओवर ना। तो डिलिमिटेशन होगा ना नहीं होगा ये बाद का बात है। इसकी ये लंबा प्रोसेस है, वेरी टफ वर्क है। लेकिन इन लोग उधर रुकसिन में जाएंगे बोले, अपना आदि समाज के साथ रहूँगा बोले हैं, रहेंगे बोले, तो इसलिए गवर्नमेंट ने देखा उसमें जाने से अच्छा होगा, जाने दिया। गवर्नमेंट का डिसीजन है, ये मेरा डिसीजन नहीं है। मैं तो रुको बोलता हूँ। तो आपका मतलब आप पब्लिक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसमें आप यू आर नॉट टेकिंग काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो लोग जा रहे बाइफरकेट हो रहे तो दे जस्ट वांटेड टू गो सो तो चला गया। इट इज देयर वे एंड बाय सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट, सो आई एम अगेंस्ट इट। हाउएवर आई कैन नॉट वर्क इट आउट टू स्टे in Lower Siang district. So does your public know that you were against it? Because they know. Let them say. Speaker will speak like that. They are against me. They will speak. But if they do come, or one of the members come as an MLA, then certainly he or she will think that it should be in Lower Siang district. Will she think that it will go? No, never. तो सर आप इसको मिसफॉर्चून सोचते हैं कि जैसे कि कोरा एनसीडो अंडर कोरा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्कल अभी तो इस सियांग में मेरा लिए मिसफॉर्चून है, लेकिन इन लोग के लिए मिसफॉर्चून नहीं है, क्योंकि दे हैव डिमांडेड दे गॉट। क्योंकि जो भी आपको एलिगेशन लगाया गया है मोस्टली अबाउट लाइक डिस्ट्रिक्ट का वजह से, मतलब जगह को डिवाइड किया गया, आपका उससे कॉन्स्टिट्यूएंसी से निकाल गया, वही तो आपको मोस्टली बोलने वाला अभी भी बोल सकते हैं। उस अगर एमएलए होता तो वो भी नहीं सकता, क्योंकि गवर्नमेंट इन फेवर ऑफ पीपल, क्योंकि इन्होंने जैसा चाहते हैं ऐसा डेमोक्रेसी में पहले बताया जी। इन डेमोक्रेसी इट इज वोटेड, इट इज बाय द पीपल। ओके तो ये आप क्लियरिफाई कर रहे हैं ना कि यू हैड नथिंग टू डू विद नो व्हेन गवर्नमेंट डिसाइडेड, व्हेन कैबिनेट डिसाइडेड, आई एम अलॉट कैन नॉट डू एनीथिंग। तो एक ऐसे एलिगेशन भी है जिसको एक फिजिकली चैलेंज इंसान को भी एक वो मिलना था गवर्नमेंट की तरफ से। यस, तेलम में आप इसके बारे में जानते हैं तो इसके लिए कोर्ट में केस डाला हुआ है। मैं नहीं डाला, कोई डाला है। लेट कोर्ट स्पीक। मैं भी और आगे जाऊंगा, मैं कोर्ट में बोलूँगा, आपको बोलने से सुविधा नहीं होगा। एक रूम बनाने के लिए
5 लाख तो नहीं होगा, 10 लाख भी नहीं होगा, 20 लाख चाहिए। तो मैं 1 रूम या 2 रूम या 3 रूम कहीं में बनाया हूँ, तो ये गाँव वाला जानेंगे इस रूम को किस में यूज़ करता है, वो इन लोग जानेंगे। बाद में पता चलेगा कहाँ में बनाया है, मैं पीछा भी नहीं करूँगा। उसके बाद हैंडीकैप वाला को ये कोई ने पैसा दे के क्या होगा, एक बार बार इसको पीछा किया होगा, 2 मैं इनको हैंडीकैप को मैं प्यार करता हूँ, कल भी था आज भी हूँ। गरीब के साथ मैं अपना कपड़ा को भी कभी कभी रास्ता में मुलाकात करने से दे देता हूँ, साथी को भी मैं दे देता हूँ। उसके बाद मेरा पास में जो है गरीब को एक लंगड़ा वाला कोई और मिलता है, कुछ मिलता है ऐसा अंधा वाला मिलता है, मैं ऐसे दे देता हूँ। तो सर ये उसमें आप सुनिए, हाँ। उसमें मैं इनको इतना दिन सहायता करके आया हूँ, लेकिन एक बार मैं 50,000 भी दिया हूँ उस स्कीम से। तो मैं इनको भी बोला था और पब्लिक को भी बोला था, इन लोग सीना भी चाहिए और दूसरा एरिया, और हम लोग को ये चाहिए। तो मैं हर आदमी के लिए, मैं चर्च के लिए मैं पैसा नहीं दे सकता हूँ, मंदिर के लिए मैं पैसा नहीं दे सकता हूँ, उसका मॉस्क के लिए मैं पैसा दे नहीं सकता हूँ, इनडायरेक्टली सहायता कर सकता हूँ। जो हैंडीक्राफ्ट है उनका कैप होगा बेड के लिए खरीदने के लिए 50,000 इज एनफ। रेस्ट अमाउंट जो का यूटिलिटी क्या है उनको कोर्ट में इन लोग बोलेंगे। ओके, तो आप जरूरत होने से इनको भी बुलाएगा। सर आप ये बोल रहे हैं कि जो एलिगेशंस लगाया है वो बेसलेस है, ऐसे बोल रहे हैं क्या आप? मैं तो फिजिकल प्रैक्टिकल को देखिए, प्रैक्टिकल इज बेटर देन एडवाइस और एलिगेशन। दिस इज माय आंसर। ओके, उसका एक लास्ट एलिगेशन है जो बोल रहे हैं कि यू आर जस्ट ए मेयर फिगर। Kento Runa is a mere figure, but power and function is run by some other person. That is my son. Strictly बोलिए ना। तो उसमें is that true? Yes, in some senses. Like when I go to Itanagar, I stay in cottage. Yes. Then authority wants to submit scheme immediately. Okay. When I do prepare and I do keep in my office, then he is to do, because he is perfect, he is an eloquent person, he is an advocate, graduation from Delhi, educated law from Delhi, he is intelligent, so I am confident on my son. So he was doing some works. Sir, but it is by nature, not only me, other also can do. I do not keep any assistant. He is my assistant. He is to do, and when he does for the people, not for me. Okay, when you say that, that's a very big statement कि बोलना कि yes, मेरा power and function is with my son. Power and function, no, he is not MLA. Power was should. Yes, when I entrust to write, then he then writes. Only. Oh, okay. No, ये शायद लोग ये बोल रहे हैं कि he is not the one whom public voted and elected as their representative. Yes. You are the I am one, voted. and then they are I am expecting voted. you to behave. I am voted. I do not write. I prepare the note. He finishes in a computer. Okay, somehow he is helping you, is aiding you that in a a power? way. Is that power? No, I have employed him, then he did it. Okay. He is not MLA, he cannot occupy the power of the chair of the MLA. So, Even if he my son. So I am not here to answer. You are the one who is going to answer. So I think you have to make your public understand that even if some functions are with him, I entrust him, but still I am your representative, and you should look. Jealousy is the greatest enemy of a person. So yes. Jealousy is in their minds, in their hearts. So that is the statement that they are giving you. Okay, nothing else. No. तो ये एक सवाल है, इसमें नाम लिखा है मिस बोम्पेक कोयू ने लिखा है
ये बहुत जनरल सा सवाल है जिसको हम लोगों ने शायद डिस्कस भी कर लिया, लेकिन मैं फिर भी रीड कर देना चाहती हूँ। मिस बोम्पेक कोयू का सवाल है। I've always heard from people saying that Kento Rina is a good human being but not a good leader. Why are they saying so? Can you give me a valid reason? और उसके साथ और दूसरा सवाल है, why are they not accepting you as a good leader? What made them say this all? As you know, a leader is and what its responsibility is. Good leader, तो उसका not by words of the others. So public के लिए Good leader is that who is voted into the power. Okay. So this is the reply. No, this person is asking me कि why people don't take you as a good leader. Let them. It is jealous. Sir, मुझे ये लगता है कि okay, some people are there who are jealous about you, who are against you, who really want to pull you down. But I want you to answer for those people, those supporter of yours. Throw you. I am giving answer. No, I really want you to answer them also. कि ये नेगेटिव वाला कमेंट नहीं है मेरे ख्याल से। ये बस आपको जानना चाहता है कि maybe she think you are a good I leader. have answered you. Yeah, maybe she मैं think. आपको इसका जवाब दिया हूँ। नहीं, मैं जस्ट क्लेरिफाई कर रही हूँ। मुझे लगता है कि शायद ये इंसान जो आपको अच्छा लीडर सोचते हैं, तो ये इसका सोच ये है कि आखिर क्यों नहीं लोग बाकी या तो इनका बोलना भी, लेकिन इन्होंने मुझको अच्छा पाती है या अच्छा पाता है या कोई ऐसा है, मैं उसको नहीं देखता हूँ। तो फिलोसफी इनका है, कोई पूछता है तो मैं इनका आंसर आपको दे दिया। So people are just jealous. That's why they are saying that you are not a good leader. Certainly. You have a good friend. When you are unemployed, when she employed or he employed, then you may think so also. Okay. It is human nature. But these are not, I think these are not your contemporaries. These are people who are like young, who wants to know about Today, young people are more intelligent than that of my age. And that's a very positive sign. That's a very positive sign. You can tomorrow they will become, one of them will become an MLA. So Yes. then let us see how he serves. That's why I think younger generation really wants to draw inspiration from the present like representatives. तो इसके लिए शायद बहुत सारा सवाल उनके अंदर आते हैं कि मतलब क्यों ऐसे है, कैसे, बिकॉज नाउ अभी का ज़माना इज़ नॉट लाइक पहले का तो ओके MLA जिसको वोट कर दिया वो जीत गया, ऐसे काम कर रहे वही, लेकिन अभी जानना चाहते हैं कि कब, कहाँ, व्हाट, वेयर, हाउ, वो सब जानना चाहते हैं। तो मुझे लगता है we cannot hide. Yes, it is open. And then when you are asked about all those things, मुझे लगता है कि हम आप एज ए रिप्रेजेंटेटिव एक ऑब्लिगेशन भी होना चाहिए कि छोटे से छोटे इंसान को भी समझा देना कि ये क्या बोल रहा है, ये क्या in whole of Arunachal Pradesh, at least Kento Rina is doing for any section of people. Rest may not, I do not say they are bad, but as I do, nobody can do. तो सर I frankly speak in front of the people. In my dealing, I do not know who is who. Yes. In my shame, everybody is Equal. same. Okay. When I ask vote, I treat myself that I am one of the worst beggars of Arunachal Pradesh because I am begging vote from the public. With that philosophy, I shall have to welcome them in future when I am voted into the power. सर एक बहुत अच्छा स्वीट सा सवाल है, इसको मैं चाहती हूँ कि आप बहुत अच्छे से इसको जवाब दें, नॉट कि वो मुझे जलते हैं इसलिए पूछ रही है, ऐसे शॉर्ट वाला जवाब प्लीज़ मत दीजिए। तो किसी ने आपको बोला है कि केंटो रिना सर ही is still more of an officer than a politician. तो yes. ये तो In those days, politicians, they spoke in different ways. They scolded, they warned,
They show their muscle power. They show their good working capacity. They speak loudly, but not today. I am having the experience of an officer. And entire in my life, you ask anywhere in Arunachal Pradesh where I served, they will reply you what type of man I was and what type of man I am today. So with humbleness, I can win everybody, not with the force. तो सर आपको ये नहीं लगता कि जैसे कि आपको बोल रहे हैं कि दे वांट टू सी यू डिफरेंट, थोड़ा ट्रिकी से देखना चाहते हैं, थोड़ा ऐसे पॉलिटिशियन जैसे हम लोग जैसे परसीव करते हैं ना वैसे देखना चाहते हैं, आपको नहीं लगता? तो आप क्या ऐसे बनना चाहोगे कि डिफरेंट देन हु यू आर टुडे? Yes, I am Kentorna. I will walk tomorrow as same. There's nothing going to change. Nothing will change. Nothing will change. I cannot change my nature. I cannot change my behavior. Because you are in a certain position now. So उसके हिसाब से आप क्या आपको लगता है कि आप उस हिसाब से लोगों को दिखा रहे हैं या फिर उस हिसाब से चल रहे हैं? Should I not welcome my people in my residence? No, you should. Should I not welcome on the way? Should I not welcome in the vehicle? Should I not welcome in the IV? Should I not welcome in the cottage? I should treat equally my people everywhere, anywhere I meet. Okay. So you are so proud of who you are. Yes. That's what you are trying I am to say. proud of my nature. I am proud of my humbleness. Tomorrow also I cannot change. I will act same. Okay. So do you think, obviously you're gonna think the same, but do you think you are the most eligible candidate for this year's election? Let us see. It is, I have told you, I have stated you that it is by the people. Okay. Democracy is by the people, later on for the people. Then, see, this time, we made 3 or 4 candidates. They did not work for the BJP office. They did not work for the BJP party. Okay. They did not work for the BJP morchas. They did not work for to and fro for the party. So long, for 5 years, I am spending. Like that other BJP MLA members of Legislative Assembly, they are also spending like that. Should them deprive? Likewise, I am second termer. I have served for second term. This time also, if I get ticket, victory is very easy. I'll get through. सर आपको इसी बात पे एक सवाल बनता है कि आपको ये नहीं लगता कि मे बी आई शुड लेट अदर ट्राई? Yes, आपका क्वेश्चन मैं पकड़ा. हाँ. मैं 11 बार इस बार छोड़ना था. इस बार छोड़ना था तो कैंडिडेट कौन है? कैंडिडेट कौन है? तो कैंडिडेट अच्छा वाला कैंडिडेट, मुझसे अच्छा वाला कैंडिडेट आइए ना. तो आइए, आपके लिए प्लेटफॉर्म खुला है, आइए. इस बार तो कोई लोग मुझको अगेंस्ट करते हैं, मैदान में आइए ना. मैं नहीं आने के लिए क्या बंद करता हूँ क्या? इट इज ऑल द टाइम ओपन. द डेमोक्रेसीज डोर इज all the time open. And you're Let ready us to fight here. You're ready to fight? Yes, ready to fight, and I will win. Yes, Okay, I am confident enough. That's very, I don't know, that is like overconfident or? No overconfident. Okay. Okay, well. Every voter I know, how to do I know, and in which way should I do I know, and which way I shall get gain I know. So I have no technique, but with my simplicity, with my plain mind, I'll win over. So सर आपको ये लगता है कि आपने जितना आपको सपोर्ट किया है, आपका सपोर्टर लास्ट 2 टर्म का सपोर्टर, उन लोगों को आपने somehow सेटिस्फाई किया है, लगता है क्या आपको? किसी को किया हूँ, किसी को नहीं किया हूँ. तो 32 करोड़ मिलने वाला कोई एक मुझसे निकल जाए तो उसको आप क्या कहेंगे? तो वो सेटिस्फाई होना चाहिए ना नहीं होना चाहिए? आप पूछिए तो. आप बोलिए मुझको. No, not here to answer you. आपको मैंने पहले भी बताया है, तो आपका जनता उसका जवाब देंगे बाद में.
कमेंसमेंट। तो सर आपका ये भी एक सवाल है इस चीज़ के बारे में। आप जैसे डिपार्टमेंट शेयरिंग का पहले भी बात हुआ था, डिमांड फॉर डिपार्टमेंट शेयरिंग डिमांड्स फॉर 36 नारी कोयू, उसमें जो एग्रीकल्चर का WRD का RWD का हॉर्टिकल्चर भी, हाँ हॉर्टिकल्चर का इसका क्या है? इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं CM से वेट कर रहा हूँ, मेरा डिमांड जो प्लेस किया हूँ और रिमाइंडर देना है तो मैं सर को, सर आपको मैं रिमाइंड दूँ तो बोले सर तो सर बोले थे नो रिमाइंड का जरूरत नहीं है, मैं हो जाएगा। सो सर को मैं वेट करता हूँ। तो सर ये ऐसे बोलने से करेंगे जैसे न्यू अभी का ये इलेक्शन होने से पहले हो जाएगा कि इट इज एट द डिस्पोजल ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश व्हेन ही वांट्स। माय डिमांड इज लेट अस जस्ट वेट एंड हाँ सी। अभी दीजिए बोल के मैं सर को अभी इसी प्लेटफॉर्म से अभी अनुरोध कर रहा हूँ, सर दीजिए ना मुझको, मैं पहले अनुरोध किया हूँ, आप दीजिए। सर आप ये आपका कैमरा तो आप देख के हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर को बोल सकते हैं हम लोग के थ्रू ये जो डिमांड है, क्योंकि दीज आर डिमांड्स की ये तो बहुत वैलिड है। आप इसको ये नहीं बोल सकते कि ये लोग बार बार इसके बारे में, जिस चीज़ को मैंने बताया है उसके बारे में बार बार पूछ रहे हैं, ऐसे भी नहीं बोल सकते क्योंकि दीज आर वेरी वैलिड डिमांड्स। तो इसके बारे में तो आपको ज़रूर कुछ करना होगा एंड देन इट विल बी मोर इजियर फॉर यू आई थिंक इफ़ यू डू दिस थिंग्स, मीट दिस अप बिफोर दिस इलेक्शन। मैं पब्लिक को बोलने से पहले मैं पहले पब्लिक को बोला था, पेपर में किया था, लेकिन ऑन 27 ऑफ जनवरी CM सर पब्लिकली बोले हैं ये पेपर हो गया क्या, पेपर होने से मैं देख दूंगा, मैं दूंगा बोले हैं, तो ये इनफ है। पब्लिक को CM से और क्या हो सकता है। CM से आगे मैं पीछे में ही हूँ, आगे मैं जा नहीं सकता हूँ। कल होंगे सर ऐसे बोले, कल देने वाला है, मैं ऐसा भी नहीं बोलूँगा क्योंकि इन्होंने खुद कमिटमेंट दिए हैं, वोट दिए हैं, वो आदमी करेंगे ही करेंगे। जी सर, हम लोग ऑलमोस्ट टुवर्ड्स लास्ट में आ गए हैं ये प्रोग्राम का, लेकिन मैं इसमें एक सवाल बहुत इम्पोर्टेंट मुझे जो लगा है, मैं अपने चैनल की तरफ से ये पूछती हूँ कि आपने जैसे कि हमने बात कर लिया कि रास्ता आपने कितना बनाया, कितना बन रहे हैं उसके बारे में बात किया, हॉस्पिटल के बारे में बात किया एंड देन एजुकेशन के बारे में बात किया, लेकिन हम अरुणाचल में, व्हेन वी टॉक अबाउट अरुणाचल, वी आर ऑलमोस्ट 100% ऑफ अस आर विलेजर्स। तो आपको जो भी वोट करते हैं आई थिंक उसका भी ऑलमोस्ट 70-80% तो जो बस्ती में बैठ के खेती करके बेचने वाले हैं, मतलब रिक्रिला ओपुगरला दोनिया तत्तदो। तो उन लोगों के लिए विलेज इकोनॉमी के लिए आपने क्या किया है? सेल्फ रिलायंस इज द प्रोसेस। अपना से खेत करें, बनाना एक, शुगर केन एक, फ्रूट थोड़ा लॉन्ग टर्म का है, फ्रूट करेंगे, इवन प्लांटेशन लकड़ी का, ओवर का भी हो, क्लाइमेट डिपेंड करके वो अपने से उस समय में करेंगे। राइस उतना नहीं है, राइस करते हैं लेकिन आजकल नहीं करते हैं क्योंकि फ्री चावल मिला, मैं उस दिन भी बताया हूँ, फ्री चावल मिला, खेत नहीं करते हैं, कुछ नहीं है। लेकिन बाकी को तो अभी मेरा गाँव में रीना में हॉर्टिकल्चर इतना है, शायद अरुणाचल प्रदेश में बाकी को नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मेरा सर्कल में 6,000 प्लांटेशन ऑरेंज खेत करने वाला। What I'm trying to ask you here is where is the market? Have you created yes that for this place where they can bring up their products and sell them? You are no need to go to Assam, no need to go to Pasigat. Customer will come with their vehicles in the field. हम लोग का लास्ट एक एलिगेशन है पब्लिक का तरफ से, तो ये लिखा है कि अंडर MLA लेड्स फंड इन 2020-21 फर्स्ट एंड थर्ड इंस्टॉलमेंट श्री लुमो रुबा डिसेबल्ड मैन ऑफ तलाम विलेज हैज बीन सैंक्शन ₹3 lakhs, ₹5 lakhs for handicraft assistance, but he did not receive any money. MLA, what is your clarification on this? इन्होंने पैसा नहीं मिला बोल नहीं पाएंगे। इन्होंने, मैं एक बार 50 दिया हूँ, उस समय मैं बोला था तुम्हारा हैंडीक्राफ्ट के लिए बहुत ज़्यादा सामान खरीदने के लिए नहीं है, तो एक बार मैं कैप खरीदा हूँ 7,000 में खरीद दिया हूँ। उसके बाद एक दास शीट में एक खरीदा हूँ,
लेकिन उतना स्मूथ नहीं है, पब्लिक को देने लायक नहीं था, इसलिए उससे मैं नहीं खरीदा हूँ। लेकिन उसको करने के लिए मैं सुविधा दूंगा बोल के मैं एक बार 50,000 दिया हूँ। लेकिन वो जो अमाउंट है मैं बोला हूँ ना, एक आदमी से 2-3 आदमी को देना है, मैं उनको भी बताया भी हूँ। उसके बाद मुझको मांगने वाला वो आदमी करेंगे, अभी बाद में कोर्ट में पता चलेगा उसका कहाँ में है। मैं बताया हुई कोर्ट में एक रूम बनाने के लिए 20 लाख लगता है, एक रूम बनाने के लिए 15 लाख लगता है आदमी बेचने के लिए, वो बाद में निकलेगा, अभी मैं नहीं बोलूँगा। कोर्ट में उसको दिखाना है, कोर्ट में पता चलेगा। नेम जो इन्होंने करेंगे, मैं अभी भी पहले भी बताया हूँ, ये चर्च के लिए, उसके बाद मंदिर के लिए, ऐसा मैं डायरेक्टली दे नहीं सकता। आई एम टू डू थ्रो समबडी, तो इनको जो मिलना है 50 मिल गया, बाकी जो है घर उसमें तो ये भी पब्लिक बैठा है। इसमें सर सैंक्शन किया गया है, तो उसके नाम में सैंक्शन हुआ है क्या? नहीं, हाँ ये नाम में होगा, उसके नाम में हुआ है, नाम में होगा या देख लीजिए नाम में हुआ होगा या हैंडीक्राफ्ट एट तेलम बोल के भी आया होगा, मुझको याद नहीं है। लेकिन इनको बहुत ये रकम 8 लाख लेके इन्होंने क्या करेंगे। मेरा बेटा भी दिया होगा, कोई भी दिया होगा, कोई भी आने से तुरा मुरा देता है। मैं काल तक देने के लिए इच्छा था, जॉब इन्होंने रिसेंटली 2 साल हो गया होगा, तो इन्होंने मेरा अगेंस्ट में जॉब किसी से पैसा लेके जब बोला तब से मैं छोड़ा हूँ। मैं जीतने के बाद मैं इनको पब्लिक को भी बोला, मैं जीतने के बाद तुम मेरा अगेंस्ट में ये कोर्ट में दिया था, कोर्ट चलते रहेंगे, मैं तुमको जहाँ सहायता करने करते रहूँगा। मैं अभी भी प्यार करूँगा उस आदमी को, लेकिन तो प्यार करने लायक आदमी नहीं है। अगर इसके अगेंस्ट में सैंक्शन हुआ है तो वो तो आई थिंक मुझे लगता है कि उसका सोचना भी वैलिड है कि उसको पैसा नहीं मिला। पैसा तो नहीं मिला, मैं बोला था तुमको मिलेंगे उतना, बाकी को मैं उसमें मेरा पास 1 रुपया भी इसका पैसा नहीं आया, मैं लूँगा भी नहीं, 1 पैसा भी नहीं आया। पैसा खर्चा हुआ है काम पे उसी गांव में। तो सर इसमें तो अगर इनके नाम में पैसा है, उसके जो भी इसमें और नाम देना पड़ेगा, नहीं नाम देना पड़ेगा, नाम देके उसको बोला हूँ ऐसा करेंगे बोल के। तो वाज ही क्लियर अबाउट दैट? हाँ, इनका जो बात है राइट है, ऐसा देखने से राइट है, राइट है। लेकिन मेरा कहना है, मैं कह दिया हूँ तुमको 50,000 मिलेंगे, बाद में तुरा मुरा बाद में मिला भी ये नहीं है, लेकिन इस अमाउंट से कुछ काम किया है। ओके, आपने पहले इसको क्लियर कर दिया था क्या? हाँ, मैं बोला था तुमको उतना नहीं मिलेगा, लेकिन तुमको मैं सहायता करता हूँ कुछ अमाउंट, बाकी जो है उसमें करेंगे, मैं पहले क्लियर किया, इसलिए कोर्ट में बोलने दीजिए। नहीं सर, इसका लास्ट एक फॉलो सवाल मैं पूछना चाहूँगी कि इस पैसे से आपने बोला कि बस्ती में कुछ काम हुआ है, पक्का हुआ है ना, तो व्हाट वेयर दोस काम्स? बिल्डिंग, अब देखिए मैं नहीं देखा भी हूँ, मैं इसको बोलना मैं पहले भी बताया हूँ, मंदिर के लिए बारे में नहीं बताता हूँ, उसके बाद मॉस्क के लिए मैं नहीं बताता हूँ, उसके बाद गुम्पा के लिए मैंने। बट सर ये एलिगेशन को आप क्लियर नहीं करेगा तो ये तो और भी कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, क्योंकि सब सिंपैथेटिक होते हैं ना इन फिजिकली चैलेंज्ड लोगों को, क्योंकि इवन इफ वी डू नॉट नो अबाउट दिस पर्सन, इनको जो मिलना है मिल गया जी, तो इनको नहीं करके किसी को करने से वो कोई नहीं देगा। इसको इनका पैसा भगवान भी लूट नहीं पाएगा, मैं मुझको छोड़िए, भगवान भी लूट नहीं पाएगा। मेरा लाइफ में देखिए तो मैं ऐसा इंसिडेंट कभी किया हूँ बोल के, मैं इन लोगों को प्यार करता हूँ जो हैंडीकैप्ड है, एनी कैटेगरी का। अभी भी कितना आपको मैं ऑपरेशन के लिए पैसा दिया। तो सर आपका इस बात पे क्लेरिफिकेशन ये है कि उसको बता के आपने जो उसको सहायता करना था आपने कर चुका है। यस, काम भी हो गया और इनको भी दिया हूँ। यस जी, तो और जो अभी ये एलिगेशन लगा रहे हैं तो ये जस्ट बिकॉज समबडी इज इन्फ्लुएंसिंग हिम टू से थिंग्स अबाउट हिम। कोई बोल रहा है पैसा दे के इनको बोलने दिया बोल के। तो सर ऐसे नहीं लगता कि हर बार को जो भी आपके ऊपर एलिगेशंस लगाया गया है, हर बात को ये नहीं, मतलब जो हमने इंटरव्यू किया, जो बात किया, तो उसमें नहीं लगता कि हर बात पे आप जो आपके अगेंस्ट है उनके वजह से है, यू आर जस्ट पॉइंटिंग आउट ऑन अदर्स इंस्टेड ऑफ लुकिंग लाइक रेट्रोस्पेक्टिव करने से। दिस इज नॉट माई नेचर। मैं किसी को भी ऐसा पर्टिकुलरली नहीं बोलता हूँ, ये अच्छा आदत भी नहीं है।
हाँ, लेकिन आपका मीडिया में भी और किसी में भी नियम में किसी को पर्टिकुलरली नहीं बोलना है। Yes, और हायर लेवल में दूसरा बात है। yes, sir. तो काल मैं इनको ऐसा बोलूँ तो इन्होंने मुझको तुम ऐसा क्यों बोला बोल के इसमें वायरल हो गया तो मेरा अगेंस्ट में केस करेंगे। छोटा सा बात में केस कर सकता है आज मीडिया में ना। हाँ। कोई भी वायरल होने से केस करेगा। केस करने से एक नहीं 100 होगा, 200 होगा, 300 आदमी केस में आएंगे। तो उससे पनिशमेंट क्या हो सकता है? बुरा पनिशमेंट। तो अब मुझे लगता है कि हमेशा आप अपना आपको सेफर साइड में रखना चाहते हैं। पक्का रखूंगा, कल भी रखूंगा, परसों भी रखूंगा। ओके। मेरा इंडिविजुअल खराब को मैं नहीं कहता हूँ जी, लेकिन समाज के लिए उतना खराब करने के लिए नहीं है जी। तो आप सर अपना पब्लिक को आपको जो सपोर्ट कर रहे हैं उनको आप क्या बोलना चाहेंगे? आप बोल सकते हैं। और सपोर्ट जो है जो आपकी अगेंस्ट है उसको भी अगेंस्ट कर रहे हैं, उसको भी हाँ। आप कुछ बोलना है तो आप अभी बोल सकते हैं। टिकट हायर अथॉरिटी का है। टिकट 16 दिन के अंदर निकलेगा। उसके बाद मैं भी अनुरोध करूंगा इन लोग को भी साथ में रहे। चलो तो खामाखाम क्यों दूसरा में जाके अपना को दुख लगाना है। मेरा साथ में रहो, चलो डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे। मैं अनुरोध करूंगा जी। और जो आपका अगेंस्ट में कर रहे हैं उसके उसको भी मैं ऐसा बोलूँगा। लेकिन अगेंस्ट वाला कोई अगेंस्ट प्रो किसी के साथ में तालमेल है उसको भी करने दीजिए। मैं कॉन्फिडेंट हूँ। तो अगेंस्ट वाला करते भी थे मैदान में आइए ना, उसको भी मैं ख़राब क्यों पाऊँ? मोस्ट वेलकम। आप कहीं कर्नल से भी आइए ना, समय बताएंगे कैसा है। ओके व्यूअर्स, तो आप लोगों ने सुना कि हमारे किंतु रीना सर जी कितना हद तक, कितना लेवल तक रेडी है। तो उसका स्टेटमेंट के हिसाब से जो भी आता है आओ, आई एम रेडी बोल रहे हैं। तो थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। एंड थैंक यू सो मच व्यूअर्स फॉर बीइंग विद अस एंड कंटिन्यू वाचिंग अस। MPL News, your one-stop destination for reliable and latest news update. Thank you so much.